Good morning. Praise the Lord. Lord is good. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you for this day 24th. We are in the 24th day. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much for helping us and giving us teaching. Lead us once more, Lord, as we submit ourselves to you. आइए हम सब मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें 2-3 मिनट। हो राला बाबा शंदरी दले ने विशिदरा बाबा री बाला लाला बशंदरे री डोलो ना बशा किरी दले है किबा री ब्रारी क्लबला ला बशंदरे दिले ने भी खोराला ना हंदरी दली ना हखबरी दिली ना खाली ना बा Korabalana Vashandari Ridolo Navushandoro Dolo Rabrari Klavalala Vashibere Delenava Rahandrari Dalene Bibeshidoro Doluna Khalina Khalemi Ralana Handari Dalena Khalina Hakbara Kira balana vashandare dilina hakbari dinindari dalina babbari dalini bibishindoro dolona ba rabalina babbaralana ba shandare dilini bi kibere dilini bi shindoro dolona bo shindara la ba rabbari dalini bi shindari dalini bi shikari dalina ba koravana handari dikilina hakbara korava baba Ridalena babari shindari dalina ba shikere delena kha korahalana baba ribare deni bibi shindoro dolon kho rombari dalina ba shikere delena ba shindari dali ridalala ba shandoro dolon khalina bi Here belene mi shindoro rabrari klavalala ba shabera helena ba Shikoro dolona hakbara, kira balana hakbare, kere belena khalina hakbaro, kora balana vashandoro dolona hambare, kibaralana khalina hakbare, kire belene kelene vishindoro, rabba ravana handari dalini bi, shikra babra ribla lele vishindara, rabani kilina hakbare, de kilina hakbaro, Korembere delena khalina ba shibere delele vishiboro, rolana khalina bashindoro dolona khalina ba, Ralana Khalina Hakbare Delina Ba Shindari Daline Kilina Hakbare Kerebelena Khalina Bashindoro Dolona Ba Rabba Rava 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 Rabra Ribra Klavala Bashindoro Ho Rabani Kilina Hakbare Delena Ba Shindara Valana Khalina Bashidoro Dolona Khalina Hakbara Rindare Delini Bishindoro Dolona Khalina Hakbare Delena Ba Rabba Rabana Handari Dalena Kilina Hakbare Delena Ba Shikaro Dolona Khalene Be Shindari Dalina Hakbari Daniki Lina Hakbare Delena Be Shindro Rodo Robo Shiba Rabrari Klaba Shibere Delena Hindari Dalina Hakbare Kire Belena Khalena Ba Shokoro Dolona Khalina Hambare Shibaro Dono Kalahambra Rabrari Klavala Shidoro Dolona Khalina Hakbare Delina Be Kebere delena khalina hakbari dalina hambare dalina bi shibere delena khalina be kebere delena khalina bo shoboro dolono khalono bo robere bere here be shidara rambra rikla baba nahandari rabini khilina hakbare khere belena ba shandoro dolono kibi shabere dani bi rabra riklobo hobo nahandari dalina ba Shavere delina khalina be shikraba nahandari dalina be oh rabari bari oh thank you riba thank you ribo oh riboro rikabani handari dalina ki sikori dalina hakbari Kira balina hakbari, kire belene khalene bishidoro hondoro, rabrari klabala lavashindoro van handari dalina khalene bi, shikara van khalahambra, kabara handari dalene khilina hakbari, shikoro dolono khalina bashindoro,
Rabrari klavalala shibere hindari. Rabanahandare delineki. Kebere delina khalinaba. Shibaro dolona handari delinebe. Shaboro rabrari drari. Krebere delina bashindoro. Ribra ribarabaramra ribarari dolorobi shikere deri birambaraba orari dalena shindoro dori bebe shikere delene rendrari Shikarolani Ramaindrare Shivere Delina Vashindara Oralana Vashindari Dali Shikoro Dalalaba. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Thank you for your mighty and divine presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We all needed to be anointed by you, Holy Spirit. Holy Spirit, you are the precious treasure in my earthly vessel. Thank you for your fruits and the gifts, the Holy Spirit, you are manifesting. Thank you, you are making me. Thank you, you are making my ministry. O Holy Spirit, with the help of your gifts, my ministry and myself will be made. Thank you, Lord. Thank you. You have the wonder way. Lord Holy Spirit, manifest your gifts in a wonder way to this wonder world. Thank you for your tongues, Lord. Thank you for your languages, Lord. In Jesus' name we praise you, we worship you. आइए एक बार फिर आज परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाएं। वचन तेरा हे प्रभु राह दिखाता है। वचन तेरा हे प्रभु मुक्ति दिलाता है। वचन तेरा हे प्रभु राह दिखाता है। वचन तेरा हे प्रभु मुक्ति दिलाता है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा। Yes, Lord. Word of God is God. Thank you. What is God is so powerful as God is powerful. Word of God is the truth. Thank you. The word of truth, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. So today I will give you one more language. We gave this name to this language is refreshing language. You know, Bible says in book of Acts, freshness comes from the presence of the Lord. Isaiah 28 says,
Through this language only you will get the rest and the freshness. So when you tired, when you exhaust, this language will help you to disappear all tiredness and exhaustness, and you will be refreshed, or you will be refreshed. Refreshness of presence of God. Thank you. When you speak in the tongues, all tiredness will disappear, all exhaustness will go, and you will feel fresh. So that's why you can call this language is a refreshing language. So note it down. Refreshing language is when we speak in tongues, all tiredness, all exhaustness will disappear by a refreshness of presence of God. Amen. So give thanks for this language to the Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, I thank you so much for this language you have given to me. Thank you, Jesus, for your grace, for this wonderful gift. With this gift, you will be fresh. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus, thank you. So, today we will study again the same under the main heading, how to strong your spirit, means how to strong your inner man. Right? Yesterday I gave one clue. With the word of God, you can be strong in your inner man. Actually, with the combination of Word of God and Holy Spirit. Bible says in Ephesians 6 chapter, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ. Right? Yesterday I gave this word. Oh, praise the name of Jesus. It is written in Ephesians 6:10. प्रभु में means Lord means God, and उसके शक्ति के प्रभाव में, शक्ति is Holy Spirit, you will be strong enough, you will be strengthened. One side Holy Spirit gives strength, another side the Word of God. Word of God is truth. That's why I am saying, yesterday we have exalted the Word of God. So yesterday we saw the mystery of the Word. And today we will see 2-3 points. With the help of this, we can strong our inner man. Right? You know, just 2-3 minutes, one more time, I will say something about the Word of God. Beauty of the Word of God, beauty of the Bible is more you read it, more you thirsty, hungry. जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, उतना ज्यादा आप वचन के भूखे और प्यासे हो जाएंगे. आपको ये बात कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी. इस बाइबल की ये खासियत है. बहुत सी खासियत है, लेकिन एक खासियत ये है, जो जितना इसके साथ समय बिताता है, जो जितना इसे खाता है, वो और इसके लिए भूखा प्यासा हो जाता है. Spending time in God's word produces reverence for God. जितना ज्यादा आप बाइबल के साथ समय बिताते हैं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं,
उतना ज्यादा आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति मान सम्मान, आदर, भक्ति और परमेश्वर का भय आने लगता है। मैं अक्सर कहता हूं, एक तरफ बाइबल है, वर्ड ऑफ गॉड मीन्स हेवन, दूसरी तरफ संसार है, मीन्स सिन। बाइबल कहती है 1 जॉन 5:19 सारा संसार दुष्ट के वश में है। संसार में आपको क्लेश मिलेगा, दुख तकलीफ, पाप रहेगा। तो वन साइड इज सिन, वन साइड इज सन। सन मीन्स वर्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड इज वर्ड ऑफ गॉड। तो जो जितना बाइबल के नजदीक होगा वो उतना पाप से दूर हो जाएगा, और जो जितना संसार में होगा, जो जितना पाप के करीब होगा, वो बाइबल से उतना दूर होगा। सो चेक योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल लेवल, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आर यू नियर द वर्ड ऑफ गॉड or are you near the sin? If you are near the Bible, you will far from the sin. And if you are near the sin, then you are far from the Bible. Very simple. So what I suggest you, be in the Word, praise the Word, glorify the Word, magnify the Word. Word is God, and Word is the seed of God, and Word is the Son of God. Amen. If you want to read, you can read what Jesus said about the Word. इस वचन के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं, आप रेफरेंस लिख लें, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। You can study, you can meditate. जीसस का क्या नजरिया है परमेश्वर के वचन को लेकर। मत्ती 4:4, मैथ्यू 4:4, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, जॉन 6:63. What is the नजरिया in the sight of angels? स्वर्गदूत की नजर में परमेश्वर का वचन क्या है, या स्वर्गदूत की नजर में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रीड लूक चैप्टर 1 वर्स 37। संत पौलुस का नजरिया क्या है वचन के प्रति। व्हाट सेंट पॉल सेज अबाउट द वर्ड। रोमन 10:17, कोलोसियंस 3:16, हिब्रू 4:12, 2 Timothy 2nd chapter 9 verse. James, what James said about the word. Read chapter 1 verse 21 to 24. Book of James chapter 1 verse 21 to 24. What is Peter saying about the word? 1 Peter 1st chapter 23rd verse and 25th verse. John, who wrote the Revelation book, what he says about the word. 1 John 2nd chapter 14 verse. Revelation 19th chapter 13 verse. He said, the name of the Lord Jesus Christ is, the name of the soon coming King is Word of God. One more thing you write, what the Word of God says about himself. Word of God speaks of itself. Romans 15 verse 4, 1 Corinthians 2:3, 1 Corinthians 3:13, 1 Corinthians 2:13, 1 Corinthians 3rd chapter 13 verse, and 2 Timothy 3rd chapter 16 and 17. From these verses
you can know what Jesus is saying about the word, what the word speaks about itself, what angel said, what Paul said, what Peter said, what John said, what James said. See, they all exalted the word of God. Amen. So now come to, again we will see the foundational word. Ephesians chapter 3 verse 16. According to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हम लोगों को अंदर से बलवंत होना है, स्ट्रांग होना है। सो क्या करें, मैं आपको 2-3 पॉइंट देने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, वी विल सी what the Bible says. You can put the heading. Point number 1, meditating the word of God. Hallelujah. First point is meditating the word of God. Book of Joshua, chapter 1 and verse 8 and 9. We will read what the Bible is saying. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. 9th verse says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Amen. We have to meditate the word of God. When you meditate the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, मनन करने का मतलब बार बार उसको पढ़ना, बार बार समझना, पवित्र आत्मा से सहायता लेकर उसको देखना, उसके डीप क्या मीनिंग है उसमें उतरना, दूसरे ट्रांसलेशन से उसको पढ़ के समझना क्या मीनिंग है, क्या रेफरेंस में बात हो रही है। तब जब आत्मा की सहायता से, आत्मा में होकर जब आप वचन का मनन करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे गाय या भैंस चारे को अपने मुंह में डाल लेते हैं और फिर एक जगह बैठ के बार बार जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं।
सो परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा आप चबाते जाएंगे, मतलब बार बार उसको पढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा उसके अंदर से रस निकलेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर से आप प्रकाशन निकाल सकते हैं, भेद की बात को निकाल सकते हैं। देखो, जब मैं ये बात आपको बोल रहा था, मेरे सामने एक दर्शन आया अभी अभी। क्या दर्शन देखा? और मेरे मुंह से वर्ड निकला कि उसका रस निकलेगा। जब मैं ये बोल रहा था तो मैंने एक कोल्हू देखा और गन्ना उसमें डाला जा रहा है। तो जब पहली बार गन्ना डालते हैं तो रस पतला सा निकलता है। जब वही गन्ने को बार बार वो उस कोल्हू में डालता है तो रस जो है गाढ़ा होने लगता है। शुरू में जब पहली बार लगाएगा तो हरे रंग का निकलेगा रस, लेकिन जब बार बार उसको डालता है कोल्हू में तो फाइनली वो रस नहीं दिखता, इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो व्हाइट सा दिखने लगता है, क्रीमी दिखने लगता है, और उसमें इतनी गाढ़ापन आता है कि झाग तक आ जाती है, और उस गन्ने के रस में जो मिठास होती है वो उसमें आने लगती है। पहली बार का जो पिरोते हैं तो वो उतना मीठा नहीं निकलेगा, लेकिन 2-3 बार जब उसको रिपीट करते हो तो फाइनली जो लास्ट होता है उसमें एक ड्रॉप भी अगर आप पिएंगे वो बहुत मीठी होगी। और जब 4-5 बार ऐसा वो कर लेता है तो बाद में वो खोई बन जाता है और फिर वो वेस्ट होता है, उसको वेस्टेज में डाल दिया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के एक वचन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार उसकी गहराई में उतरेंगे, पवित्र आत्मा से सहायता लेंगे, पवित्र आत्मा की निगाहों से देखेंगे, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के दान से देखेंगे, तो उस वचन के अंदर जो रस है वो निचोड़ आप निकाल पाएंगे। जब आप मेडिटेट इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर के वचन को जब मेडिटेट करते हैं तो ये मेडिटेशन आपको वचन के प्रति शिक्षक बना देता है, आपको टीचर बना देगा। आपकी टीचिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, आप दूसरों को शिक्षा देने वाले बन जाएंगे। गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? अब सुनो इसका प्रकाशन की एक बात। आप में से कोई ये कहेगा कि ये बात तो परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कही थी, मुझसे थोड़ी कही। यू आर राइट। पुराने नियम में परमेश्वर बाहर था और परमेश्वर ये बात यहोशू से कह रहे हैं, मुझसे नहीं कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए कैसे अप्लाई होगा कि अब प्रभु जी से मैं ये नहीं कह सकता और प्रभु भी मुझसे ये नहीं कहेंगे, वरन अब प्रभु मेरे अंदर है। जब वो ही मेरे अंदर आ गया तो मेरा ध्यान बाहर नहीं जाएगा, मेरा ध्यान अंदर लगेगा। आज की तारीख में प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। तो जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां वो मेरे साथ साथ जा रहा है। अब परमेश्वर का वचन मैंने आपको बोला था, आपकी अलमारी में नहीं, आपके हाथ में नहीं, बाहरी हाथ में नहीं, आपके अंदर होना है। सो परमेश्वर का वचन अंदर है। जिसने परमेश्वर का वचन लिखा वो आत्मा वो भी मेरे अंदर है। तो मुझे क्या करना है? उसमें बने रहना है, उसमें जड़ पकड़ना है, उसमें बढ़ना है, उस पर ध्यान करना है। पुराने नियम में जब यहोशू से कहा तो उसने कहा कि यू मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट एंड दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। चित्त से मतलब क्या है? चित्त से मतलब है मन में, स्टोर रूम में, अर्थात मन से अर्थ यहां पर क्या है कि वचन जो है इतना भरा हो तुम्हारा हृदय वचन से कि तुम्हारे होठों पे हो। जस्ट स्पीक आउट,
वचन वहां होना है। अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे और मैं समझता हूं 10वें अध्याय को, उसके 8वें पद में लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इतने निकट आपके होना है वचन कि आप अपने मुंह से उसे वचन को बोल दें। बट वॉट डज इट से? द वर्ड इज नियर यू। हाउ मच नियर? इन योर माउथ, इन योर हार्ट, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. So वचन को कहाँ होना है? तकिए के नीचे नहीं। कई लोग तकिए के नीचे रखते हैं कि रात को बुरे सपने ना आए। कई लोग सोते वक्त अपनी छाती पे रख लेते हैं, क्या कि मुझे डर ना लगे। कई लोग दीवारों में लिखते हैं, कई पोस्टर बना के टांग लेते हैं, कई लोग इसे अलमारी में रखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि ये आपके हार्ट में होना है और आपके मुंह में। इन योर माउथ एंड इन योर हार्ट। समझिए, इतने करीब होना है, इतना आपका मनन चिंतन हो जाए, इतना ज्यादा आप मनन करें, मेडिटेट करें कि परमेश्वर का वचन अब बुक फॉर्म में न रहकर अलाइव होकर मेरे हृदय में, मेरे मुंह के निकट रहे। इतने निकट रहे कि जब जैसी परिस्थिति हो मेरे मुंह से वो वचन बाहर आ जाए। सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस वचन को मनन करने के लिए। इस वचन को जितना आप मनन करते जाएंगे उतना भीतर से आप स्ट्रांग हो जाएंगे। दाऊद ने जब पहला भजन लिखा, पहला ही भजन में उसने 6 आयतें लिखी। 6 आयतों में से वो 2 आयतें प्रभु जी के वचन की तारीफ में लिखता है। पहले तो वो ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। तो आपका उठना, चलना फिरना, आपका बैठना, वो सब पर नजर है। और दाऊद समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कितना वचन से भरे हो कि वचन के अनुसार आप खड़े हो, वचन के अनुसार आप चलें, वचन के अनुसार आप बैठें। इवन आपकी जो कंपनी है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वो वचन के अनुसार होना है। वो कहता है, ब्लेसेड इज द मैन who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers। न तो दुष्टों की युक्ति पर चलने, न पापी के मार्ग में खड़े हो, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठे। अर्थात जो परमेश्वर को हल्के से लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, या यूं कहूं व्यर्थ में उसका नाम लेते हैं, जो बात बात में कसमें खा लेते हैं और कहते हैं बाय गॉड मैंने नहीं कहा। डोंट से दिस थिंग्स। ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। सो वो स्टार्टिंग ही इस बात से करता है, आपका उठना, बैठना, खड़ा होना, चलना किस प्रकार का होना है। तब वो दूसरे वचन में और तीसरे वचन में कहता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। He says in verse 2, but his delight is in the law of the Lord,
and on his law he meditate day and night. See, अगर आप परमेश्वर के वचन पे रात और दिन, दिन और रात मनन करते हैं तो आपकी चाल बदल जाएगी, आपका उठना बैठना बदल जाएगा, खड़े होने का अंदाज बदल जाएगा. Oh, this is the quality of the word of God. Without your knowledge, he changed you. और लोग आपको देखेंगे. बाइबल कहती है कि वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है. His delight in the law of the Lord. क्या आप डिलाइट हो पाते हैं? क्या आप प्रसन्न होते हैं? चेक करें अपने आप को. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो क्या आप अंदर से खुशी होती है आपको या नहीं? या आपको बोरिंग लगता है बाइबल पढ़ना? या आपको ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती हम पर लाद दिया गया है? अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में एक्साइटेड नहीं होते हैं, वचन को सुनने के बाद आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आता है, 6 बजे रहते हैं, अगर 9:15 नहीं बजते वचन को सुनने और पढ़ने में, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. हेलो आपके अंदर पीस नहीं होगा, खुशी नहीं होगी. वचन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? इन वॉट एंगल यू आर लुकिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. जिस नजरिए से आप देखेंगे परमेश्वर का वचन, उसी प्रकार आपसे बिहेव करने लग जाएगा. वॉट यू विल से यू विल हैव. यस, वॉट यू विल से दैट यू विल हैव. ध्यान देना. आई थिंक नीति वचन में सर लिखा होना चाहिए. जस्ट आई विल कंफर्म, प्लीज वेट. बुक ऑफ Proverbs 23, आई थिंक वर्स 7 है. यस, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है. सो जैसा आप सोचेंगे, जिस नजरिए से आप देखेंगे, बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा. सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपका मन परमेश्वर के वचन में लगता है कि नहीं लगता? बाइबल कहती है जिसका मन परमेश्वर के वचन में लगता है वो कल्याण पाता है. आपका कल्याण कहां छिपा हुआ है जी? हेलो, आपका और मेरा कल्याण कहां छिपा है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में. अगर आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे. सो डोंट टेक इजी. व्यर्थ में ना लेना वचन को. वचन सत्य है. प्रोवर्ब 13 सेज कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जिसका मन वचन पर लगता है वो कल्याण पाता है. प्रोवर्ब्स 16 वर्स 20, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है. तो आप चाहते हैं कि आपका भला हो, आप पीसफुली रहें, आपको लिबर्टी मिले प्रभु का वचन सुनाने की, तो आप अपना मन वचन में लगाएं और चेक करें कि क्या आप वचन के पढ़ने सुनने से खुश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं. बाइबल जो है वो रिटन वर्ड है और ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से अपनी दुल्हन को लव लेटर दिया गया है. मुझे मालूम नहीं आपने कभी लव लेटर लिखा है किसी को या नहीं, या किसी ने आपको लिखा है कि नहीं. जब लड़का लड़की किसी को लव लेटर लिखते हैं तो मुझे ईमानदारी से बताइए उस लेटर को पढ़ने की इच्छा होती है या नहीं? आजकल तो लेटर नहीं आता, आजकल तो लोग SMS भेज देंगे या मैसेज भेज देंगे, है ना. आजकल आसान है लेटर को पढ़ना. तो पहले जब कागज में लिख कर भेजते थे तो लेटर जब भेजा जाता है तो
जो लिखता है जिसको, वो एक्साइटेड हो जाता है, वो उतावली करता है मैं जल्दी से पढ़ूं। क्या आपके अंदर वो उतावलापन आता है? क्या अब आपके अंदर वो जल्दी आती है, तत्परता आती है, प्रवीणता आती है कि मैं जल्दी से बाइबल पढ़ूं? दाऊद रात को समय से पहले उठ जाता था कि मुझे, अरे भोर को उठते ही मुझे बाइबल पढ़नी है, अपना वचन, प्रभु के वचन पे मनन करना है। वही दाऊद भजन संहिता 1 लिख रहा है और वो कहता है कि उसकी व्यवस्था से, उसके वचनों से मैं प्रसन्न होता हूं। तो क्या आप प्रसन्न होते हैं जब लव लेटर आपको मिलता है? आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, एक झील पैदा होती है कि मैं, लोग चोरी छिपे उसे पढ़ते हैं। मैंने सुना है टेस्टिमनी लोगों की, लोग बाथरूम में जाकर पढ़ते, रजाई ऊपर ओढ़ लेंगे और लाइट ऑन करके, कोई किसी को पता ना चले, मम्मी डैडी को मालूम नहीं चलना चाहिए, और उस लेटर को पढ़ते हैं। फिर उस लेटर को बड़े छिपा के हिफाजत से रखते हैं, किसी के हत्थे ना लग जाए, और बार बार पढ़ने का मन करता है। क्या एक ही बार पढ़ के लेटर फाड़ देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो? नहीं, आपका मन बार बार पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं उसने आपको लेटर लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा। इसलिए उन्होंने आपको लव लेटर लिखकर भेजा है कि आप उसे पढ़ो। यू मस्ट बी एक्साइटेड टू रीड हिज वर्ड, हिज लेटर। उसे बार बार पढ़ें। और अगर आपको बार बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपकी मुस्कुराहट नहीं आ रही है, आप हंसते नहीं हैं, खुशी नहीं हो रही, प्रसन्नता नहीं आ रही, इसका मतलब है अंदर गड़बड़ है, या तो वो रिलेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है। और दाऊद कहता है कि उस पर रात और दिन ध्यान करना है। मेडिटेशन कब करना है? डे में भी एंड नाइट में भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या सिखाया गया? हम लोग दिन में बाइबल पढ़ लेते हैं। बोले पढ़ तो ली थी, जैसे कोई फॉर्मेलिटी अदा करनी की जा रही है। ये नियम कानून नहीं है, ये आपकी मर्जी है। यू हैव टू रीड द बाइबल विलिंगली, स्वतः, खुद ब खुद। प्यार जो होता है खुद ब खुद डेवलप होता है, अंदर से निकलता है। तो केवल हम लोग को सिखाया यही कि हम लोगों ने दिन में बाइबल पढ़ ली, बोले पढ़ तो ली। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कहती है दिन और रात, यानी दिन में भी पढ़नी है बाइबल और रात में भी पढ़नी है। यही वो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन, यही प्रभु है जो इस्राएलियों के साथ जंगल में चला था। दिन में बादल का खंबा बन गया, रात में आग का खंबा बन गया। तो बाइबल को दिन में भी पढ़ना है, यानी प्रभु के वचन के साथ दिन में भी संगति होनी है और रात में भी संगति होनी है। दिन में ये बाइबल आपके लिए बादल का खंबा बन के हिफाजत करेगा, रात होते ही परमेश्वर की ज्योति उजाला बनकर आपकी जिंदगी में काम करेगा। सो कमिट योरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड, lend yourself to the word of God, dedicate yourself to the word of God and commit, promise to Lord, Lord I will read it in daytime also and night also. इतने साल हमने इस बात को नहीं सीखा, न जांचा। प्रभु से माफी मांगी और कहें प्रभु मैंने गलती की, मुझे क्षमा करें, मैंने बाइबल केवल दिन में पढ़ी, रात में नहीं पढ़ी। यही कारण है हम भीतर से कमजोर हैं। लेकिन अगर आप डे एंड नाइट पढ़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, योर इनर मैन विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू कैन फाइट एनी बैटल with the help of the word of God and the Holy Spirit, and I give you guarantee you will receive the victory, you will win your battle. Yes, hallelujah, hallelujah. इतना ही नहीं, बाइबल इसके आगे कहती है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अगर आप खुशी के साथ डे एंड नाइट पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है आप उस पेड़ के समान बन जाएंगे जो बहती नाली के किनारे लगा है। जब आप रिवर साइड में लगा हुआ पेड़ देखेंगे वो हमेशा हरा दिखेगा, उसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं।
और उसमें फल आते हैं। बाइबल कहती है, बाइबल तुलना कर रही है डे एंड नाइट मेडिटेट करने वाले को उस पेड़ के समान, और वो व्यक्ति जो काम करेगा उसमें वो सफल हो जाएगा। मीन्स ही विल गेट द सक्सेस। जो बात यहोवा ने यहोशू से कही थी, दिन और रात इसमें मनन करना, इसको इस पर ध्यान करना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है वैसा तू करे। क्यों मनन करना है? जैसा प्रभु ने लिख दिया वैसा तुम करो। उसको करोगे तो तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो काम सफल हो जाएगा। तुम्हारे वर्ल्डली वर्क कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्क भी कामयाब हो जाएंगे। क्यों आज सेवकों की मिनिस्ट्री फ्रूटफुल नहीं है? Why it is not fruitful ministry? Although so many pastors and evangelists and the workers are working, but there is no fruit. Why? Because they are not meditating day and night on the word of God. And then they are going here and there and trying to make contact with different denomination, with different organization, so that they will earn something. No. You meditate day and night. Then you start your work, your ministry. 100% you will get the success. Your ministry will be fruitful. It will spread not only India, but outside of India it will spread. कल की बात है, अभी 2-4 दिन पहले किसी ने हॉस्पिटल से मुझे फोन किया। मैं उन्हें नहीं जानता, किसी ने उन्हें नंबर दिया। उनका बच्चा आईसीयू में था और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। बाद में जब बच्चा घर आ गया, उस बच्चे के बाप को बुखार हो गया, उल्टियां हो गई और पता नहीं क्या क्या परेशानियां, जो सिम्टम बता रहे थे वो कोरोना वाले सिम्टम चल रहे थे। मैंने उनको कुछ हिदायत दी और उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने रोज मुझे फोन करना शुरू कर दिया, ब्रदर आप हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। मेरे घर से 110 किलोमीटर दूर, मुझे स्पेशल कल पास बनाना पड़ा। पास बनवा के मुझे उनके घर जाना पड़ा, और वो आर्मी एरिया में रहने वाले लोग। और मैंने उनके घर में बैठ के केवल सच्ची बात कही। मैंने कहा भाई मैं सत्य आपको बताना चाहता हूं, और मैंने ऋग्वेद से प्रारंभ करते हुए बाइबल तक मैं उनको ले आया, और फाइनली मैंने उन्हें उस महायज्ञ का वर्णन क्रूस की कथा के साथ कर दिया। और आपको मालूम, उनके 2 बेटे, 1 लड़की, हस्बैंड वाइफ और उनकी मदर, 6 लोगों का परिवार, 6 के 6 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको ग्रहण किया, विश्वास की प्रार्थना कराई, और तो और मुझे ऑफरिंग भी दी। हालेलुया। मैं अपने साथ एक भाई को, वहीं से लोकल आदमी को बुला लिया था। वो मेरे संग थे, 2 लोग, और उन्होंने मेरे ख्याल से वीडियो या रिकॉर्डिंग क्लिप कुछ बनाया है। अगर मुझे भेज दिया तो मैं आप लोगों को भेजूंगा। सो कल मैंने 6 आत्माओं को जीता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ आप करेंगे वो सफल हो जाएगा। हेलो, रियल ब्लेसिंग क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास भरपूरी है। मैं वाइफ से कह रहा था, या परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करो, हमें कितनी बढ़िया जगह में उसने रखा हुआ है। क्या बढ़िया मौसम है, सुहावना मौसम, भरपूरी का उत्तम पदार्थ खाने को दे रहा है, उत्तम पहनावा दिया है, उत्तम ट्रैवल करा रहा है। मेरे दिल की गहराई से मैंने उसे धन्यवाद दिया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप अपने आप को रोज प्रभु के वचन से भरें, खुशी के साथ, आनंद के साथ, जोर जबरदस्ती या किसी नियम कानून के तहत नहीं, या जी पास्टर ने कहा है जी आज पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं। नो 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 नो, इट शुड कम विलिंगली फ्रॉम योर हार्ट। आपके अंदर से आना है, तब आप जयवंत जीवन जिएंगे, तब आप फलवंत जीवन जिएंगे, तब आप सफल जीवन जिएंगे, तब आप आशीषित जीवन जिएंगे। यीशु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। जाओ और जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। Oh, you will rejoice. You will rejoice. So first point,
meditate the word of God. When you meditate, you will become a teacher, and your spirit man, your inner man will be enough strong. Point number 2. Does the word of God means practice the word of God. यानी वचन पर चलने वाले बनो, वचन को इस्तेमाल करें, केवल रखे नहीं अपने पास, केवल सुने नहीं, केवल बोले ही नहीं, उस पर अमल करें, जैसा वचन कहता है वैसा एक्शन करें. What Jesus has said, Jesus said, become a doer of the word of God. Hello. Let this word come into your deep inside the heart. Say with me, I will be doer of the word of God. मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा. पवित्र आत्मा, जब मैं वचन को पढ़ूं, मनन करूं, आपका वचन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे होठों पे आ जाए, ताकि मैं उसे बोल सकूं, जैसा वचन कहता है वैसा मैं करूं. होली स्पिरिट, मेक मी अ मैन ऑफ डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय, यदि आप उसके 21 पद से 25 पद तक पढ़ें, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21 to 25, इट इज रिटन, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. क्योंकि जो वचन पर सुनने वाला होता है, उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है. मेरी हर टीचिंग में पता नहीं कहां से याकूब आ जाते हैं. मैंने पूरी याकूब की बुक 99 वर्स हैं कुल, ओनली 100 वर्स भी नहीं है, केवल 5 चैप्टर हैं. आपके बाएं हाथ का खेल है, आप तुरंत याद कर लेंगे. ओनली 99 वर्स, कंठस्थ कर लो. बहुत काम आता है याकूब. इंग्लिश बाइबल में लिखा है, प्रेज द नेम ऑफ जीसस. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with the meekness the implanted word, which is able to save your soul. Listen carefully. But be the doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. अगर आप केवल सुनने वाले हैं तो आप अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरे को नहीं धोखा दे रहे. बड़ा आसान है कहना, जब हमारी हार होती है, हम असफल होते हैं, तो दूसरी चीजों पर, दूसरे लोगों पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं इसकी वजह से हुआ है, इसने मुझे धोखा दिया है. नहीं 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 नहीं, उसने धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है. Why? Because you are only listener, you are not the doer. Bible says, become a doers of the word of God, and not only hearers, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. आप अपना चेहरा शीशे में देखो, आपको दिखाई देगा, और आप पलट जाओ. अब आप देखो अपना चेहरा, आपको अपना चेहरा याद नहीं होगा, आपको दूसरे का चेहरा याद होगा, लेकिन अपना चेहरा भूल गए होंगे. यह है दर्पण की खासियत. बाइबल कहती है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन दर्पण है, शीशा है. जब जब आप इसको देखोगे, ये दर्पण आपकी कमियां दिखा देगा और आप उसको रेक्टिफाई कर लें. फॉर ही लुक्स एट हिमसेल्फ एंड गोज अवे एंड एट वंस फॉरगेट व्हाट ही वाज लाइक. बट द वन हु लुक्स इनटू द परफेक्ट लॉ, द लॉ ऑफ लिबर्टी, एंड प्रिजर्व्स, being to hearer who forget, but a doer who acts,
he will be blessed in his doing. जो परमेश्वर के वचन की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, जो आदमी मेडिटेट करेगा वही इस पर चल पाएगा। जो पहले आपको इसको पढ़कर अध्ययन करके मनन करना है, आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करते हैं तब फिर आप उस पर एक्शन करते हैं, वैसा ही आप काम करते हैं जैसा वचन में लिखा है, तो आप सिद्ध व्यक्ति बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं, आप में कोई कमी घटी नहीं होती, आप सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, आप मसीही जीवन को जी पाते हैं। So, according to the Bible, become a doer of the word of God. You must take the action. दाऊद ने जब भजन 1 लिखा परमेश्वर के वचन के बारे में, उसका दिल भर आया और उसको लगा यार मैंने कुछ कमी कर दी है, केवल 2 बातें वचन के बारे में लिखी हैं। तो उसने भजन 1 के साथ 1 और लगा दिया। 1 और 1 लगा तो कितना हुआ? 1 और 1 2 भी होता है और 1 और 1 11 भी होता है। हेलो, 1 के साथ 9 लगा दिया तो बन गया 19 और 19वें वचन में उसने परमेश्वर के वचन की तारीफ में कितने वचन लिख दिए? अगर आप पढ़ें उसमें 14 वचन है और फिर वो बताता है कि परमेश्वर का वचन कितना खरा है, प्राण को बहाल करता है, वो विश्वास योग्य, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देता है। अगर आप ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं तो आप वाइज पर्सन बन जाएंगे। उसके उपदेश से आनंद मिलता है, उसका वचन आंखों को निर्मल करता है। उस बाइबल कहती है वहां 11वें वचन में लिखा है कि वो तेरा दास तेरे वचन से चिताया जाता है, सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, मधु से भी मीठा है। पहले 1 अध्याय लिखा, फिर 19 लगा, फिर उसने में भी तसल्ली नहीं हुई तो उसने 1 के साथ 1 और लगा दिया, अब 119 हो गया। बाइबल की सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता 119, 176 पद है, 176 वर्सेस एंड 176 वर्सेस, ऑल वर्सेस एक्सॉल्ट द वर्ड ऑफ गॉड। केवल वचन के बारे में लिखा और कुछ लिखा ही नहीं। 176 की 76 आयतें केवल परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठा रही हैं। सी द इंपॉर्टेंस, सी द वे हाउ डेविड इज सीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। तब बाइबल में लिखा है हिब्रू 4:12 के अंदर कि जब आप इस पर एक्शन लेते हैं तो इस वचन के साथ क्या हो जाता है, वचन के अंदर क्या 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 चीजें हैं, इस सब आपको वहां पर दिखाई देगा। हिब्रू 4th chapter 12 verses, the word of God is alive, powerful, living, active, sharper than two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, discerning the thoughts and intention of your heart. These are the qualities of the word of God. So apply the word of God, speak the word of God, action on the word of God, become a doer of the word of God. जब आप वचन पर चलने वाले बनते हैं, वचन के अनुसार करने लगते हैं, तो जैसा आप कहते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा आप हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुसज्जित करें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरें। आपका हृदय, आपका मुंह वचन से भरा हो, बाइबल आपके अंदर हो।
मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर वचन देहधारी हो गया. वर्ड ऑफ गॉड बिकम फ्लैश एंड वी आर ऑल born as a flesh. So we are flesh. Now the time has come. Flesh become the word of God. Once upon a time, the word of God become the flesh. Now the time has come. The flesh become the word. एक टाइम था जब वचन देहधारी हुआ. आज समय आया है कि देह वचनधारी बन जाए. So I wish you to fulfill yourself with the word of God. When Holy Spirit is inside and word is inside, then Holy Spirit take it from the word and He will give you the revelation and you will grow in the revelation of the knowledge of Christ. You will be strong person. Oh, you will be strong person. In the book of Joshua, Bible says कि परमेश्वर ने बोला कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता. God said in book of Joshua chapter 1 verse 5, no one can stand before you entire in your life. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा. If you do what I am saying, then no one can stand before you. Amen? Because God, He Himself, in shape of Word of God and Spirit, be with. Third point, give first place to the Word of God. तीसरा पॉइंट लिखें कि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है. नीति वचन 4 अध्याय 20, 21, 22. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, 21, 22. वहां ऐसे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा. इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है. My son, be attentive to my word, incline your ear to my saying, let them not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them and healing to all their flesh. वहां लिखा है कि मेरे वचनों को ध्यान से सुन और इसको धारण कर ले. कहां? अपने मन में धारण करना है. परमेश्वर के वचन को तू अपने मन में धारण कर. मेरी बात को ध्यान से सुन, अपना कान मेरी ओर लगा, अपनी आंख से दूर मत होने दे. अगर ये वर्ड ऑफ गॉड तेरे पास है, तेरे अंदर है, तो इनफ है कि तेरा सारा शरीर भला चंगा रहेगा और तू जिएगा. आपको मालूम बेनिफिट क्या है? जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है, या यीशु ने क्या कहा, जिस व्यक्ति के पास वचन होता है उसको यीशु मसीह क्या कहते हैं? यू आर गॉड. अगर आपके पास यीशु का वचन है तो यीशु क्या कहते हैं? व्हाट जीसस सेज हु कैरी द वर्ड ऑफ गॉड, हु कैरी हिज वर्ड, ही सेड यू आर गॉड. John chapter 10 verse 34, 35 you read, it's written. Psalm 82 verse 6 says, see your position, who are you? You are just like God, mini God. Exodus 7 verse 1 says, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे
फिरौन राजा के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं. जस्ट लाइक गॉड यू आर रिप्रेजेंटिंग मी. When Moses stand before King Pharaoh, he was representing God, spirit and life in his word. John 6:63 says. So if you have the word, if you are carrying the word, means you are carrying God, representing God. You are mini God. Amen. See more. What Jesus said, how Jesus treat, if you are giving attention to the word, what he says. In the book of Luke chapter 8 verse 21, he says, whosoever listen my word and obey my word is my relative. आप उसके रिश्तेदार बनना चाहते हैं? यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उसकी मां उसके भाई बहन वहां आ गए. लूका 8:21 से मैं बोल रहा हूं. चेलों ने कहा, प्रभु जी आपकी मदर और आपके भाई बहन आए हैं, तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं. यीशु ने क्या कहा? मेरी माता मेरे भाई यही हैं. जो वहां लोग बैठे थे उनको कहा, इशारा किया, ये ही हैं. कौन? जो परमेश्वर का वचन सुनता और मानता है. सो इफ यू आर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर डूइंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर रिलेटिव टू जीसस. आप उसकी फैमिली के लोग बन जाते हैं. इन बुक ऑफ 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स 21 सेज कि यीशु ने कहा, जो जिसके पास मेरी बातें हैं, जो उसे मानता है वही मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार करता है, और मैं भी उससे प्यार रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. So if I obey his word, he will reveal himself to me. अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यीशु अपने आप को मुझ पर प्रकट करे, तो सिंपल बात क्या है? यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा, मेरा डैडी भी करेगा, और मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर दूंगा. I will reveal myself to you if you obey my word. और सुने अच्छी बात, अगर आप पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 9-10वें पद को अगर आप पढ़ें, तो वहां पर देखिए परमेश्वर अपने आप को किस तरीके से प्रकट करता है. पवित्र आत्मा, Holy Spirit reveal hidden things, how he will. वहां पर लिखा है 9 और 10 पद में, जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की हैं. परंतु परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है, जांचता है. आमीन, आमीन. सो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं. परमेश्वर के वचन के द्वारा कई प्रकार की आशीषें मिलती हैं, मालूम. लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. अगर आप जीवन में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इट विल कम थ्रू वर्ड ऑफ गॉड. Psalm 1:3, Joshua 1:5 and 8. अगर आपका ऊपर वाला कोठरी खाली है, मीन्स यू डोंट हैव विजडम, दिमाग खाली है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर नहीं आते हैं,
you will get the wisdom if you have the word of God. Psalm 119, 98, 99, 100. Read it. आपको मालूम पड़ जाएगा. Psalm 19 verse 7. Ordinary person become extraordinary person. You will be more wise than your teacher. You will be more wise than your enemy. बाइबल में लिखा है. Psalm 119 verse 98 says, you will be more wise than your enemy. 99 verse says, you will be more wise than your teacher. सोचिए, जो टीचर आपका एग्जाम लेने जा रहा है, पेपर बना रहा है, उससे ज्यादा आप बुद्धिमान हैं. तुम फेल हो ही नहीं सकते, असफल हो ही नहीं सकते. हाउ? When you have the word of God, when you carry the word of God, when you fill yourself with the word of God, you will be extraordinary person. आप holiness चाहते हैं? Bible says, John chapter 17, holiness of God is the word of God. Fill yourself with the word of God. Psalm 119 verse 11, fill yourself with the word of God. You become holy. If you want victory, if you want sword, Ephesians 6:17 says, this is the blessing of the word of God. You want great reward? Word of God warn us and give us the great reward. Bible says, Psalm 19:11, मुझे और आपको ये मिल जाएगा. वचन के अंदर जीवन और ज्योति है. इफ यू वांट जीवन, इफ यू वांट ज्योति, यू हैव टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड. आपको फेथ चाहिए, वो वचन में है. हियर द वर्ड, रिसीव द फेथ. फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. सो वेयर इज द फेथ? फेथ इज इन द वर्ड ऑफ गॉड. विश्वास कहां है? वचन में. कैसे आएगा? सुनने से. सुने, वर्ड ऑफ गॉड को सुने. दीज आर द ब्लेसिंग्स. और आपको क्या चाहिए? आपके पास प्रभु का वचन है जिसमें ये सारी आशीषें हैं. आपके पास प्रभु का आत्मा है जो सब कुछ कर सकता है. और क्या चाहिए? और फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सुबह शाम उठ के एक ही प्रार्थना, दे 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 दे. Our focus is on the hand of Jesus. No, from today onward, your focus come to the face of Jesus. Let your spirit man hear the word of God. Let you receive the Rhema word. Have fellowship with the Holy Spirit. Speak the word. Action the word of God. Become a doer of the word of God. And live victorious life on this earth. Amen. Amen and amen. Praise the name of Jesus. So many things I can say. But we want to close here. Or you want one more point? What? We have time. Okay. Just you can write fourth point. How to become your spirit man strong. How to strong your spirit inner man. Fourth point, when you listen the voice of the Holy Spirit. So already I have spoken so many things on this point. Just want to say one word from the Bible. Open John 6. Yes. Listen what is written in John 6. Let me open. Yeah. आपको याद है जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस खाने की चीज है, मेरा लहू पीने की चीज है. जो मेरा मांस खाएगा, लहू पिएगा, उसमें अनंत जीवन है. जब जीसस ये टीचिंग दे रहे थे तो लोगों को बड़ा टफ लगा. ये तो बहुत कठिन बात कह रहा है. लोग उठ के चल दिए. जब लोग उठ के जाने लगे तो यीशु ने चेलों से कहा, भाई तुम भी चले जाओ. तो चेले बोले,
प्रभु जी हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 to 68। जीवन की बातें अगर चाहिए तो वो कहां है? यीशु के पास हैं जीवन की बातें। हालेलुया। The word of life you can receive from Jesus. So hear the voice of the Holy Spirit. Have communion with the Holy Spirit. Have close relation with the Holy Spirit. Always communicate with the Holy Spirit. You will see your inner man will be strong. Your spirit man will be strong. And you will walk on this earth as victorious person. So God bless you. See you tomorrow. And today's homework is Book of Acts chapter 2 verse 38. प्रेरितों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके 38 पद को हम पढ़ेंगे। ये आज का होमवर्क रहेगा, आप इसे याद कर लें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will be received the gift of the Holy Spirit. Holy Spirit is itself a gift. So if you will receive, okay? So God has given us one gift, His Son Jesus. And Jesus gave us two gifts. One is the Word of God and one is the Holy Spirit. So be thankful to Jesus, grateful to Jesus. आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दो गिफ्ट से नवाजा। आपने अपना आत्मा दिया, अपना वचन दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इन गिफ्टों के लिए। आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हम आज से आपके वचन के साथ समय बिताएंगे, आपके वचन को अपने हृदय में भर लेंगे, अपने होठों पे रखेंगे, उस पर मनन करेंगे, ताकि हमारा भीतरी मनुष्य आप में बलवंत होता जाए। प्रभु यीशु जी, हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आप ही के महान समर्थी नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस पूरे बैच के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन एंड आमीन।